अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने लिक्विड स्टेट शुरू किया। इस लिक्विड स्टेट में हमने आपको ये बता दिया, जो कि आप पहले से जानते ही हैं, कि लिक्विड स्टेट जो है इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। तो इंटरमीडिएट स्टेट होने के सब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दैट इज़ intermediate between solids and gases. Some of the properties which we discussed yesterday, those properties clearly distinguish between liquids and gases and also liquids and solids, in which we see volume of the substance, mass of the substance, compressibility, pressure exerted, movement, flowing property, etc. All those properties we use to distinguish between liquids and gases. And out of the various properties of liquids, we have been asked to study three important properties. Among those three properties, the first one which we discussed yesterday was vapor pressure. Then second property is surface tension. And third one is viscosity. These three properties have to be discussed in this unit. So far we have discussed vapor pressure of liquids, and this vapor pressure, as you know, when we take a liquid in a closed container, we observe that the molecules on the surface, they evaporate and go into the vapor phase. Then after some time, these molecules from the vapor, they again collide with the surface of the liquid and change into liquid, and in this way they get condensed. Thus, in a closed container, the two processes take place at the same time. On one side, evaporation takes place, and on the other hand, condensation takes place. Since we have seen yesterday that process of evaporation in the beginning is very fast, because there aren't molecules above the surface of the liquid because of using evacuated vessel. But as soon as the process of evaporation continues, the number of molecules in the vapor phase starts to increase. With the result, they try to return back to the liquid surface. So we have seen yesterday that a stage is reached when the number of molecules going into the vapor phase and the number of molecules getting changed into liquid phase, that is process of evaporation and process of condensation, their rates become equal. So when the molecules of the vapor phase, when they come back to the liquid, that means they collide with the surface of the liquid, and due to that collision, the pressure is exerted on the surface of the liquid by these vapors. And this pressure, which is exerted on the surface of the liquid at the time of equilibrium at a given temperature, is called as vapor pressure of that liquid at that temperature. सिंपल सी बात है। इसलिए हमने यहाँ पर भी डेफिनेशन में लिखा है, vapor pressure, the pressure exerted by the vapors of the liquid above it at a given temperature on the surface of the liquid with which it is in equilibrium is called as vapor pressure. तो ये हमने कल अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। तो ये जो वेपर प्रेशर है, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने कल भी आपको बता दिया कि हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम इन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें एक रिजल्ट मैंने यहाँ पहले लिख के रखा है, दैट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। यानी जिस वक्त किसी कंटेनर में हम लिक्विड को ले रहे हैं, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स यहाँ वेपर स्टेट में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सिंपली ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर जो होता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब यही हुआ, इसमें कूलिंग हो जाती है। अब यह हमें अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई कूलिंग टेक्स प्लेस,
बाय दिस एवापोरेशन। ये सिंपल सी बात है, जैसे हम पहले ही जानते हैं कि इस लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। क्योंकि जब ये कॉन्स्टेंटली इन मोशन है दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर मोशन। क्योंकि इन सारे मॉलिक्यूल्स की मोशन एक जैसी नहीं होती है, इनकी मोशन डिफरेंट होती, इनकी मोशन डिफरेंट होती है। जब मोशन डिफरेंट है इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। अब जिन जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वही मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाते हैं, वही मॉलिक्यूल वेपर फेज में चेंज हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा कुछ कम। तो जो एनर्जी हम लेते हैं मॉलिक्यूल दैट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब आप खुद देख लीजिए कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो तो वेपर फेज में चले गए, अब जो मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में रह गए इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो जब एनर्जी कम हो गई तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी कम होगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो दैट मीन्स कूलिंग टेक्स प्लेस। ठीक है ना। तो जिस वक्त एवापोरेशन होती है, एवापोरेशन के ज़रिए कूलिंग हो जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारी डे टू डे लाइफ में भी हैं। मिसाल के तौर पर जब हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग से जो पसीना हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, फिर वो पसीना वेपर्स में तब्दील होता है। वेपर में तब्दील होने के लिए वो बॉडी से एनर्जी रिमूव करता है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो कूल डाउन हो जाती है ना। जब गर्मी का मौसम होता है या जब बॉडी में फीवर होता है तो फीवर सबसाइड तब होता है जब स्वेटिंग हो जाती है, या गर्मी से बचने के लिए हमारी बॉडी परस्पिरेशन कर रही है, स्वेटिंग कर रही है, ताकि ये स्वेट जो है ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी रिमूव करे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑपरेशन के ज़रिए कूलिंग हो रही है। ठीक है ना। या एक और एग्जांपल इसकी देख लीजिए, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन में जो हम पानी रखते हैं वो पानी ठंडा रहता है। वो ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो पोर्स होते हैं वहाँ से पानी बाहर आ जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द मड कंटेनर। तो सरफेस पे ये मड कंटेनर की सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ड्यू टू हीट ऑफ द एनवायरनमेंट दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, तो अंदर से और मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। इस तरह से कंटिन्यूसली जो हीट एनर्जी इस पानी की है वो चली जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ एवापोरेशन, तो पानी ठंडा रह जाता है। तो एक इफेक्ट ये है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इस वेपर प्रेशर का ये है कि जब एवापोरेशन होती है एवापोरेशन के ज़रिए कूलिंग हो जाती है। इसके बाद एक और अहम पॉइंट है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर जो लिक्विड्स का होता है, डिफरेंट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। मिसाल तौर पर आपके पास वाटर है, आपके पास अल्कोहल्स हैं, आपके पास एसीटोन है, आपके पास बेंजीन है। यू हैव सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। अगर आप इन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर नोट करेंगे तो सबों का वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं होगा। इनका वेपर प्रेशर जो है दैट वेरीज फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड। यानी अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो इसमें जाहिर सी बात है एक फैक्टर जो है, जैसे यहां आपके सामने आ गया, एक फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड यानी लिक्विड का नेचर जो है दैट अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं सबों का वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सबों का नेचर एक जैसा नहीं होता है। आपने देख लिया कि जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं इनकी रेट ऑफ एवापोरेशन डिफरेंट है।
या हमने ये पढ़ा कि जो लिक्विड्स हैं इनके दरमियान इंटर पार्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि सभी लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं है, कहीं पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, कहीं पे वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जाहिर सी बात है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होंगे तो नेचर ऑफ फोर्स जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। अब जैसे वाटर की बात आप लेते हैं, वाटर में आपको मालूम है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज़ अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए जिस वक्त वाटर में एवापोरेशन होनी है, मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में चेंज होना है, ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को इजीली इसको ये एवापोरेट होने नहीं देगा। उसके बरक्स अगर आप पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में सिंपली वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक फोर्सेस हैं। इसलिए पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। इसलिए आपने देखा होगा जब हम एक ओपन कंटेनर में पानी लेते हैं, दूसरे ओपन कंटेनर में पेट्रोल लेते हैं, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एवापोरेट हो जाते हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि कोई एवापोरेशन कोई कुछ नहीं हो रहा है, मगर जिस वक्त पेट्रोल को हम ओपन कंटेनर में रखते हैं तो हम आसानी के साथ देखते हैं कि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एवापोरेट होते हैं और हम अपनी आंखों से उसके वेपर्स देखते हैं। इसकी वजह यही है कि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक हैं, वन डर वाल्स फोर्स हैं, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल आसानी के साथ वेपर्स में तब्दील हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। तो जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर जो वेपर्स की तादाद होगी वो पेट्रोल में ज़्यादा होगी, उसके बरक्स वाटर में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी। अब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर होंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इस तरह से जिन लिक्विड्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन लिक्विड्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वहां पर इवापोरेशन फास्ट होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल चेंज होंगे इनटू वेपर्स, सो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसलिए आप ये कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाई वेपर प्रेशर होता है। उसके बरक्स जैसे बेंजीन है या एसीटोन है, ज़्यादा बेंजीन में ज़्यादा वेपर प्रेशर है, एसीटोन में उससे कम होता है, क्योंकि बेंजीन जो है यहाँ पर वन डर वाल्स फोर्स हैं और एसीटोन जो है एसीटोन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हैं, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कम्पेयर टू बेंजीन। फिर अगर आप वाटर लेंगे उसमें उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और यहाँ पर वन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो ये फोर्स पे डिपेंड करेगा, जहाँ पर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे वहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा और जहाँ पर फोर्सेस वीक होंगे वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। दूसरा फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, ये सिंपल सी बात है, आप आसानी के साथ इस चीज़ को समझ जाओगे, क्योंकि आपने देखा है कि वाटर जो होता है वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, यानी इसकी एवापोरेशन हो रही है एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर कम होगा तब भी एवापोरेशन होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी एवापोरेशन तो हर वक्त होती है। बस फ़र्क इतना है कि कम टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवापोरेशन कम होती है और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट होगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ रहे हैं, मिसाल के तौर पर जब सर्दियों का मौसम होता है, जनवरी फरवरी मार्च जब होता है, तो उस वक्त जो पूल्स में पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो भी एवापोरेट होता है, बट दैट देयर द एवापोरेशन टेक्स प्लेस स्लोली। यानी किसी पॉन्ड में पानी है तो वो पानी मुमकिन है कि 10 दिन 15 दिन में खुश्क होगा, यानी उस पानी को वेपर्स में चेंज होने में 15 दिन लग जाएंगे। अब अगर यही पूल इसमें इतना ही पानी होगा और ये जून जुलाई का महीना होगा, तो जून जुलाई में हम देखेंगे यही पॉन्ड जो है ये खुश्क होता है जस्ट इन 1 or 2 days। यानी मार्च अप्रैल में इट टेक्स 10 days 15 days, while as in जून एंड जुलाई इट टेक्स ओनली 1 or 2 days। यानी 1 या 2 दिन में ही सारा पानी इवापोरेट हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि जो मार्च अप्रैल का महीने जो होते हैं हियर इन कश्मीर,
ये सर्दी के मौसम है, इसमें टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर में इवापोरेशन आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। उसके बरक्स जब गर्मी का मौसम आता है, इन टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है। वो तो जाहिर सी बात है, अब क्यों होगा? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल अब चेंज होंगे इनटू वेपर्स। तो ये बात जो है कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो मॉलिक्यूल जो एवापोरेट होते हैं उनकी रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाती है। इस चीज़ को हम एक और तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिंपल कर्व है अंडरस्टैंड करने के लिए। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इससे भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, और फिर जब रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ इस साइड पे हम लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ से हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर हम यहाँ इस साइड इस एक्सिस पे चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिखाता है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर गैस, पर्टिकुलर लिक्विड का ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, सपोज एट टेम्परेचर T1 हमें इस तरह की कर्व आ जाती है। आप ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश, ये एक कर्व है, ये कर्व जो है यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है। मैं कहता हूँ कि ये कर्व जो है इट इज एट ए टेम्परेचर T1। ये कर्व इंडिकेट क्या करती है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। पहले ये कर्व इंडिकेट करती है कि ये एक लिक्विड है, लिक्विड में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड, इन सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, कुछ ऐसे हैं जिनकी इंटरमीडिएट है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा है, और आप देख रहे हैं जिनकी ज़्यादा होती है वही चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। क्योंकि आप देखते हैं कि जल्दी जल्दी भी वेपराइजेशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। ज़्यादातर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी होती है। तो ये देख लीजिए, ये जो कर्व हमने डाल दी, ये कर्व इंडिकेट करता है कि सपोज इस टेम्परेचर तक अगर हम लेंगे T1, टेम्परेचर तो T1 ही है, कि यहाँ तक ये एनर्जी, यहाँ तक जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इन मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत कम है। और ये जो मॉलिक्यूल हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा है। मान लो यहाँ तक जो मॉलिक्यूल हैं इनकी एनर्जी दरमियान दर्जे की एनर्जी है, न ज़्यादा कम है और न ज़्यादा है, हायर भी नहीं है। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस लेवल की है, यानी जो हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये जो कर्व हमें दिखा रही है, इस कर्व में एक कर्व यहाँ नीचे पस्त है, पस्त इंडिकेट करता है कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। और ये जो यहाँ पर इसने पीक लिया है, पीक इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये जो इतने मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूल इनकी एनर्जी जो होती है वो दरमियाने दर्जे की होती है, न ज़्यादा कम और न ज़्यादा हद से ज़्यादा। यानी ये एनर्जी लेवल, एनर्जी की एक लेवल है, ये दूसरी है। E1 मॉलिक्यूल जो हैं इनकी एनर्जी कम है, E2 जो हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा, ये मॉलिक्यूल जो है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मगर बहुत कम मॉलिक्यूल, यानी कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कम है और ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा है। और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी E1 और E2 के दरमियान है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है। इंटरमीडिएट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा हैं, कम एनर्जी वाले भी बहुत कम हैं, और ज़्यादा एनर्जी वाले भी बहुत कम हैं, उनकी तादाद भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब जो ये मॉलिक्यूल हैं जो इस रीजन में आते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यही मॉलिक्यूल वो हैं जो वेपर स्टेट में तब्दील हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ एट ए टेम्परेचर T1 ये मॉलिक्यूल जिनका
सपोज एरिया में लिखूंगा ABCD, ये मॉलिक्यूल, इस एरिया में जितने मॉलिक्यूल पड़ते हैं बस यही मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में तब्दील होते हैं एट टेम्परेचर T1। अब अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का या इस लिक्विड का टेम्परेचर T1 से T2 में तब्दील करेंगे, यानी हम हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी से इसका टेम्परेचर रेज होगा। जब टेम्परेचर रेज होता है तो सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर रेज होता है, जिनका कम होता है उनका भी बढ़ जाता है, जिनका इंटरमीडिएट होता है इनका भी बढ़ जाता है। तो जब 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 हीट देने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये कर्व जो है ये थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह से कर्व जो है ये अब शिफ्ट होने का मतलब देख रहे हैं कि पहले कितने मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी बहुत कम थी। अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 से T2 कर दिया, अब कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं इनकी तादाद कम रह गई। कम क्यों रह गई? क्योंकि इसमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स वो हैं जिन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करके एवरेज एनर्जी अख्तियार की। अब देख लीजिए एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं इनकी तादाद भी अब कम हो गई, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वो हैं जिन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की और इनकी एनर्जी बढ़ गई। और अब जो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसका अब आप देख लीजिए एरिया, पहले ABCD था, अब देख लीजिए अब ये है EBCF, यानी अब इतने मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी E2 से ज़्यादा, यानी हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद अब बढ़ गई। जब हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में तब्दील हो जाएंगे। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो कर्व या ये जो ग्राफ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, एक है नेचर ऑफ द लिक्विड, दूसरा है टेम्परेचर। तो इस वेपर प्रेशर का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, थर्ड पहलू, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पहलू जो है या तीसरा इफेक्ट आप जो कहिए या रिजल्ट कहिए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं कि जब हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाती है। तो अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। पहले देखिए एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है। एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है ये हमें अंडरस्टैंड ज़रूरी करना है। एवापोरेशन में लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में तब्दील होते हैं, और जब बॉइलिंग हो जाती है, बॉइलिंग में भी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इस एतबार से दोनों प्रोसेस एक जैसे हैं। एक जगह भी लिक्विड चेंज होता है इनटू वेपर्स, दूसरी बॉइलिंग में भी लिक्विड चेंज होता है इनटू वेपर। फिर फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क ये है कि जो एवापोरेशन है, एवापोरेशन के दौरान सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं इनटू लिक्विड, जबकि बॉइलिंग में क्या होता है आपने देखा होगा, जब लिक्विड बॉयल करता है तो नीचे से बीच में से मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं और चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं बॉइलिंग जो है इट इज़ द बल्क फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना नहीं है, एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। एवापोरेशन के दौरान सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। तो बॉइलिंग के दौरान जो मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ द लिक्विड, इवन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड होते हैं, वो भी चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। इसलिए ये एक फ़र्क है बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि एवापोरेशन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात सुनिए, एवापोरेशन जो है, एवापोरेशन इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब हुआ एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया कि हम देखते हैं
कि एवापोरेशन मार्च अप्रैल के महीने में भी हो रही है, इवन कि जनवरी फरवरी में भी हो सकती है, किसी भी मौसम में, किसी भी सीजन में, या आप ये कह सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो जाती है। बस फर्क इतना है, कम टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवापोरेशन कम होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होती है। मगर बॉइलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, बॉइलिंग हर एक टेम्परेचर पे नहीं होता है। बॉइलिंग जो है ये इट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब हर एक टेम्परेचर पे बॉइलिंग नहीं हो सकता है। इसका मतलब है उस एतबार से हम कहेंगे तो बॉइलिंग जो है नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो दिस 100 डिग्री इज बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपराइजेशन का जहां तक ताल्लुक है या एवापोरेशन का जहां तक ताल्लुक है, ये तो 0 डिग्री पे भी हो सकता है, 10 पे भी, 20 पे भी, 30 पे भी, 40 किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो जाता है। तो एक बात ये है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो बॉइलिंग है ये कब होता है, व्हेन बॉइलिंग टेक्स प्लेस, व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग तब होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है। ये पॉइंट नोट कीजिए, ए लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर on which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, जिस टेम्परेचर पे ये होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, उसी टेम्परेचर पे ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। तो फिर उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर ऑन विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हर जगह एक जैसा नहीं है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और आप जानते हैं जूं जूं आप हाइट लेते हैं, जूं जूं आप समंदर की सतह से ऊपर जाते हैं, किसी पहाड़ पे जब हम चले जाते हैं, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट हाइट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जिस वक्त हमें लिक्विड को चेंज करना है इनटू वेपर्स, यानी बॉयल जब करना है, तो हमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। जाहिर सी बात है, सी लेवल पे चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वहां पर हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बरकस हाइट्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए वहां हमें वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हीट देने की जरूरत पड़ेगी या कम टेम्परेचर रेज करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि वाटर जो है एट सी लेवल इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मगर जब आप एट ए हाइट जाते हैं, किसी पहाड़ पे जाते हैं, सपोज लद्दाख जाते हैं, लद्दाख में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हवा की कमी है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। इसलिए वहां पर अगर हमें लिक्विड को बॉयल करना होगा तो वहां पर हमें वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नहीं लाना है, बल्कि वहां पर कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा। मुमकिन है 70 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। इसलिए लद्दाख और सी लेवल पे एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नहीं है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब हमें कुकिंग करनी होती है, सी लेवल पर जल्दी जल्दी हमारे खाने तैयार होते हैं, जबकि लद्दाख में हमारे खाने इजीली तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि वहां पर तो बॉइलिंग हो रही है लो टेम्परेचर पर, मगर खाना तैयार नहीं होता। इसकी वजह यह है कि लो टेम्परेचर पे कुकिंग नहीं होती है। कुकिंग करने के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत है, तो वो खास टेम्परेचर जो है वो जनरली 70 डिग्री से अबो है। इसलिए जब 70 डिग्री तक ही टेम्परेचर पहुंच गया तो वाटर कैसे बॉयल होगा? ये वाटर तो बॉयल होगा, मगर फूड कैसे तैयार होगा? फूड को तैयार करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर कैसे बढ़ाया जाता है? इसका एक सिंपल सा तरीका ये है, आप बर्तन लीजिए, इस पर ढक्कन रखिए, ढक्कन पे कोई वजन रखिए, वजन जो है ये प्रेशर इंक्रीज करता है।
या जब हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है उस पर भी वेट लगा होता है, वो वेपर्स को बाहर आने नहीं देता है, तो अंदर जो वेपर्स रहते हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द फूड, तो उस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। जब वेपर प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है फिर कुकिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। इसी तरह से एक और पॉइंट ऑफ नोट कीजिए, ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपेलेंसेस इस्तेमाल करते हैं, इनको भी ये एट हायर टेम्परेचर ओवनज में या प्रेशर कुकर जैसे अपरेट्स होते हैं उन्हीं में उनको हीट करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है अंदर से। जब वेपर प्रेशर बढ़ गया या एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। एट हायर बॉइलिंग पॉइंट जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं। इस तरह से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहते हैं। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था इसका, बॉइलिंग का, जो बॉइलिंग होती है। तो इसी तरह से एक और पॉइंट भी इसमें नोट करने के काबिल है, वो ये कि जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग से क्या होता है, कभी कभी कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बॉयल होते हैं एट देयर पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, तो कुछ नहीं होता। जैसे वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, H2O वेपर्स में चला जाता है तो H2O ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बरअक्स कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे इसलिए उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम उन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होता है, उनकी बॉइलिंग जो होती है वो बहुत जल्द हो जाती है। एट एट लोअर वेपर प्रेशर्स हम उनकी बॉइलिंग करते हैं, तो इस तरह से वो ब्रेक हो जाने से, जिस तरह मैंने कहा ना यहाँ पर लद्दाख में कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, इसी तरह से वो लिक्विड जो सपोज जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 80 डिग्री सेल्सियस होगा, मगर 80 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते वो डिकम्पोज हो जाता है मॉलिक्यूल। अब ज़रूरी नहीं है हम इसको बॉयल करेंगे एट 80 डिग्री, हम इसको 60 डिग्री पर ही बॉयल कर सकते हैं। किस तरह से, हम उसका जो वेपर प्रेशर जो होगा वहाँ के एटमॉस्फेयर का, उसके एनवायरनमेंट का, वो हम डिक्रीज करते हैं। जिस बर्तन में हम उसकी वेपराइजेशन करते हैं उस बर्तन में से हम आधा आयर निकाल देते हैं, उससे उसका प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर वो लो टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देता है। जब वो लो टेम्परेचर पे बॉयल करता है तो उस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज या डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो दिस वाज समथिंग अबाउट इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें आपने देख लिया कि कूलिंग हो जाती है और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर आ गया, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो चूँकि आज का क्लास कंपेरेटिवली थोड़ा लंबा हो गया तो ये क्लास फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम दूसरी प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन, और इसके अलावा भी एक और पॉइंट है दैट इज शीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कल आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।